Hello, Assalamu alaikum, and a very good evening to all of you. Let's make a beginning. Although the numbers are still a little short today, but we have to begin on time. Early birds should get, the best results. So, interestingly, today we have, as you can see on the screen, we have three presenters today. All of these presenters are our tax experts, and as we had shared with you, um, from this week onwards, the subject of our discussion is going to be taxation. And it's going to be like this for the current week as well as for the coming week. So I hope all of you are ready. You are all inspired, active, enthusiastic. This is a very important subject as far as developing skill goes. I would rate it one of the top skills that one needs to have in place if they want growth in their in their professional career. So uh, you know f- focus as much as possible, keep the sessions as interactive as all the previous sessions that you've attended. अभी तक मैं आज जो पिछले सेशंस हुए हैं मैं उनकी रिपोर्ट्स निकाल के चेक कर रहा था, एंड आई टोल्ड यू कि आप लोग जो जो सवाल पूछते हैं, जो एक्टिविटी लेवल है, कितनी देर अटेंड करते हैं सेशंस, ये तमाम इंफॉर्मेशन ये सिस्टम हर इंडिविजुअल के लिए रिकॉर्ड कर रहा होता है. सो आज मैंने कुछ रिपोर्ट्स जनरेट की हैं और मैं उसको उनको ऑब्जर्व कर रहा था. गुड रिजल्ट्स, लेकिन मैं अभी भी आई एम अ लिटिल unhappy, let me call the word unhappy, that there are individuals who have been quiet, जिनके नाम, when you're looking at questions, when you're talking to individuals, when you're looking at hand raises, जब क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहे होते हैं तो उसके अगेंस्ट जो नाम लिखे हुए हैं वो भी याद हो जाते हैं, राइट? सो ऑफ कोर्स राफे का नाम याद है मुझे, उस्मान खालिद का नाम याद है, मुर्तजा हुसैनी का नाम याद है, आप तकरीबन तमाम लोगों के, निमरा का नाम, मारिया जलाल का नाम याद है. सो ये नाम, वी वुड कॉल देम कॉमन नेम्स, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस करते हैं, इंटरैक्टिव लेते हैं. बट जब मैंने लुक एट द एंटायर लिस्ट, देयर आर वेरी मेनी इंडिविजुअल्स जो कि बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं. रिमेंबर वन थिंग, you can only gain the maximum benefit of this program if you are acting, if you are interactive, if you're asking questions, if you're getting your concepts clarified, right? If you are taking an opportunity, if the presenters ask you a question, a challenge question, you take that opportunity to try to answer it. Right or wrong, that's a separate matter. But being active in the session, that means a lot. Okay, so that's my message in straight away in the beginning. Um about the three experts that you see on the screen, they look like experts as well. Especially Muhammad Farooq looks like Aristotle. Yeah, so he's in deep thoughts. So very fine gentlemen, very capable. Let me introduce all of them to you. I mean, the one common factor among all of them is that they're all tax experts. But the other common factor that's there is that these are our champions, our stars from the last year's six digits program. So और आपको ये गाइड भी करेंगे और बताएंगे कि सिक्स डिजिट्स प्रोग्राम ने इनको कैसे हेल्प किया है, इनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, क्या डेवलपमेंट, क्या मोटिवेशन इन्होंने फील की, और कैसे इस प्रोग्राम ने इनको हेल्प किया. आज अगर मैं आप लोगों को इन इंडिविजुअल्स के बारे में बताऊं, और मैं ये भी बताऊं कि अभी पिछले सिक्स सिटीज प्रोग्राम को खत्म हुए एक साल नहीं हुआ, एक साल से कम वक्त गुजरा है. बट you look at them here, they all three of them are members of ACCA Pakistan's taxation subcommittee. जो हमने पोस्ट बजट सेशंस रन किए, जो हमने पंजाब जो PRA पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के लिए सेशंस रन किए on sales tax act, etc., after the budget announcement. These were the individuals who had a major contribution in those sessions. They made presentations, they were involved in the conversation. So that is the flight that they have taken straight after their 6 digits program. So, and we really appreciate
that interaction and that interactivity that these young individuals have demonstrated. So Hafiz Suleiman, Sikandar Ishtiyaq, and Muhammad Farooq, these are going to be your experts for the taxation sessions. As you can see on the presentation slide, we're going to start with the Income Tax Ordinance 2001, जिसके बाद income tax returns की बात होएगी, how to file income tax returns. सिकंदर और फारूक इसके बाद आएंगे और individually withholding tax returns, और फारूक आएंगे जब तो sales tax returns के बारे में बात करेंगे. गाइस मुझे ये बताएं, आप लोग वेल्थ स्टेटमेंट्स के बारे में भी बात कर रहे होंगे इनकम टैक्स के साथ साथ ही? यस, हम पूरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का मेथड जो है वो नेक्स्ट सेशन में आएंगे आफ्टर विदहोल्डिंग टैक्स. परफेक्ट, ठीक है. तो आई विदाउट एनी फर्दर अडू, अब ये सेशंस जो हैं ये फुली पैक्ड सेशंस होंगे एंड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इनमें अवेलेबल होगी. आप लोगों से वंस अगेन मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगा जितना ज़्यादा इंटरैक्टिव हो सके हों, राइट. मैं जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी कहूँगा कि लोगों को अनम्यूट करें, उनसे क्वेश्चंस पूछें, उनसे कमेंट्स लें, and so that it becomes a very interactive, wholesome session. So with that perfect beginning, we will make a start. सिर्फ एक announcement मैंने करनी थी और वो ये है कि in another 15 minutes, अगर आप लोग नमाज ब्रेक ले लेंगे 10 मिनट्स के लिए तो सब लोग जाके नमाज पढ़ के आ जाएंगे. हमने इसलिए टाइम थोड़ा सा लेट रखा हुआ है, लाहौर के लिए लेट है, इस्लामाबाद के थोड़ा सा लेट है, लेकिन कराची को साथ हम मैच कर लेते हैं. तो हमें 10 मिनट्स की नमाज ब्रेक एट अराउंड 6:50 या 6:55 ये हमें देनी होगी. आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिएगा. मेरा ख्याल है 6:50 से लेकर 7 o'clock तक अगर आप नमाज ब्रेक दे देते हैं 10 मिनट्स की, तो that will be convenient for all who want to go and say their prayers. ठीक है जी. All right, thank you very much, and over to the three fine gentlemen. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's Hafiz Suleiman, ACCA, and I'm currently working as Manager Accounts and Taxation at Hanif Jewellers, and also the member of Taxation Subcommittee, MNP ACCA Pakistan. So this is my brief introduction. Over to Sikandar for his introduction. Thank you. I am ACCA member and also am the member of ACCA Subcommittee for Taxation. I am currently working as Senior Executive Finance in Triton Boston. It's one of the largest wind power plant in Pakistan. And now I will hand over to Mr. Farooq to give his brief. I am working as General Manager with SMC Group of Companies. I have total experience of around more than 12 years. I am very happy to mentor you guys, very happy to attend this session. Thank you for your time. Over to Hafiz Suleiman. Thank you Umar. Thank you Sikandar. Actually हम एक साल पीछे ही जा रहे हैं जैसे हम अपना 6 digit program attend कर रहे थे. So we are very happy to have you here, and especially to have some affiliates and students as well. So I'm glad कि आप लोग 6 digit के लिए आए. So let's talk about tax. आप में से कई लोग अभी तक कहीं पे सीवीज अप्लाई कर चुके होंगे, कुछ लोग अभी अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रहे हैं. तो आपके लिए ये फैक्ट जानना बड़ा जरूरी है कि फॉर सर्वाइवल इन पाकिस्तान, and it's really very important to know the local taxation and local laws as well. So 6 digit program आपको employability skills के लिए हर तरह का स्किल जो है वो डिलीवर करने चाह रहा है, और ये सिर्फ डिलीवरी ऑफ स्किल्स नहीं है बल्कि ग्रूमिंग ऑफ योर पर्सनालिटी एज वेल. सो इसको अटेंड करना और इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना आपको ही बेनिफिट देने वाला है. एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे अपना हैबिट क्रिएट करेंगे काउंटर क्वेश्चनिंग का और इंटरैक्टिव रहने का, तो इट विल हेल्प यू इन प्रोफेशनल लाइफ एज वेल.
क्योंकि आपका एक हैबिट क्रिएट हो जाता है। और बेसिकली ये जो एक्टिव रहना है ये आपको आपके कंफर्ट जोन में से निकालने का एक तरीका है। बिकॉज व्हेन यू आर इन कंफर्ट जोन तो आप कहते हैं बस ठीक है हम तो कंफर्ट जोन से निकल के आपका जो टारगेट है उसको अचीव करें, लेकिन वहां पे फिर से कंफर्ट जोन में जाना ये भी गलत है। हर दफा अपना टारगेट आगे करते जाएं ताकि आप कंफर्ट जोन से तो बाहर रहेंगे लेकिन आपके टारगेट ऊपर से ऊपर चलते जाएंगे। सो डोंट थिंक के बस इधर ठीक है, कहीं पे भी एंड नहीं होता। ऑलवेज लुक फॉर गुड। So let's start with the brief on income under Income Tax Ordinance 2001. So पाकिस्तान में प्रॉपर एक पूरा ऑर्डिनेंस बनाया गया इनकम टैक्स के ऊपर, जो हर निटी ग्रिटीज को जो भी आपकी इनकम से रिलेटेड है और उसके ऊपर कैसे टैक्स किया जाएगा सबको डिफाइन करता है। इट्स बेस्ड ऑन द यूके लॉज एज वेल, क्योंकि हमें पता है कि बेसिक जितने भी लॉज हैं उनकी जो भी अंडरग्राउंड रियलिटी या अंडरग्राउंड बेसिक है वो यूके के ही लॉज से रिलेट करती है। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आपको काफी चीजें डिफरेंट मिलने वाली हैं एज कम्पेयर टू द यूके लॉ। उनकी रीजंस भी हम कोशिश करेंगे साथ साथ आपको डिफाइन करें, लेकिन आपको एक चीज ये करनी पड़ेगी कि यूके से इसको कंपेयर भी करके आपने मुझे भी बताना है। एंड एवरीथिंग विल गोइंग ऑन इन सेशन लाइक कि यूके में ये था और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पाकिस्तान आपको ये कहता है। इसके अंदर कई चीजें आपको शॉकिंग ऐसे भी मिलेंगी कि जो यूके में टैक्सेबल नहीं है लेकिन यहाँ पे टैक्स्ड होती हैं। सो लेट्स हैव लाइक हमें 5 मिनट अभी रिक्वायर्ड है। समवन इज सेइंग नमाज ब्रेक, तो हम 5 मिनट के बाद जाएं या अभी जाएं? व्हाट यू सजेस्ट गाइस? रहमान, मेरी सजेशन है कि आप 5 मिनट के बाद चले जाएं। बाद चलते हैं एंड इतनी देर में जो हमारे मोस्ट सीनियर पर्सन है फरूक, वो अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे रिलेटिंग टू इनकम टैक्स फॉर पाकिस्तान एंड यूके। Thank you, Hafiz Suleiman. Thank you very much, guys. अच्छा, सबसे पहले जो है आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये काफी ज्यादा जिसको कहते हैं कि लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए एक्टिव है आजकल आपका एफबीआर भी। अच्छा, जो एक मसला आ रहा है कि देयर आर अराउंड 5 to 6 ऑटोनमस बॉडीज इन पाकिस्तान, जो इसके अंदर कुछ आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की हैं जिसमें आपका प्रोविंशियल टैक्स लगता है, कुछ आपकी है ये जो है आपका फेडरल है एक एफबीआर जिसमें आपका फेडरल लेवल पे टैक्स होता है। अच्छा, जो आपकी प्रोविंशियल है वो हर प्रोविंस की अलग-अलग होती है और उनके अपने रूल्स हैं, लेकिन क्योंकि ये सेशन जो है जस्ट एफबीआर से रिलेटेड है, सो इसके अंदर जस्ट एफबीआर से रिलेटेड ही मैटर्स डिस्कस होंगे, वेदर वो सेल्स टैक्स के हों, विदहोल्डिंग टैक्स के हों, इनकम टैक्स के हों। जहां तक रह गया है मेरा अपना एक्सपीरियंस, आप इसको इस तरह समझ लें कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट इनकम्प्लीट होता है विदाउट प्रॉपर नॉलेज ऑफ टैक्सेशन एंड लॉज पार्टिकुलरली। ठीक है, बाकी जो है इंशाल्लाह हाफिज सुलेमान शुरू करते हैं आफ्टर नमाज ब्रेक। आप लोगों के पास जस्ट 10 मिनट है, वी विल बी बैक आफ्टर 10 minutes by 7 PM max. Thank you very much.
Assalamu alaikum. Welcome back. So are you guys ready? Okay. So how many of you have passed P6? Right. तो एक फैक्ट आपको बताता हूँ टैक्स के बारे में कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो ही इज द स्विमर और ही और शी इज अ स्विमर, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे उसको पता चलता है ना कि पानी में बंदा डूब सकता है तो उसको स्विमिंग भूल जाती है। तो यही हाल हमारा भी होता है कि हमें अनलर्न करनी है चीजों को। अगर हम पाकिस्तान टैक्सेशन की बात करें तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो भी डिजाइन किया गया है इसके अंदर निटिग्रिटीज बहुत ज्यादा हैं, काफी कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू दोज लॉज व्हिच वी लर्न बिफोर। उसकी रीजन ये है कि ये एक टाइम की पॉलिसी नहीं बनी हुई, ये टाइम के साथ साथ कि जी हमें इसमें भी चेंजेस चाहिए, इसमें भी चेंजेस चाहिए। वी स्टार्टेड दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन आउटलाइन। सो मैं आपको थोड़ी सी सेशन आउटलाइन दूंगा। यू कैन डाउनलोड द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फ्रॉम fbr.gov.pk। वहां पे जब आप फुल नीचे चले जाएंगे तो वहां पे है आपके ऑर्डिनेंस एंड ऑल द मटेरियल अवेलेबल फॉर यू। आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डाउनलोड करना है अपने रेफरेंसेस के लिए और आप साथ उसके रूल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अपडेट नहीं किया गया वेबसाइट पे। फाइनेंस एक्ट 2020 जो है वो रिलीज हो चुका है लेकिन अभी उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेजर हेड्स ऑफ इनकम। आज का मेन टॉपिक भी हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इनकम से रिलेटेड है, तो हम 5 मेन हेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको एक एक के अंदर मैं डिटेल बताऊंगा कि इसकी क्या क्या मतलब एप्लीकेबिलिटीज हैं, आप कहाँ कहाँ पे टैक्स होते हैं। सो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की फॉर्मेशन ऐसे है कि सबसे पहले वो आपको सारे सेक्शंस देता है। सेक्शंस में आपकी हर चीज की डेफिनेशन है सेक्शन 2 में। इसके बाद आप डिफरेंट सेक्शन स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको हर चीज की डिटेल दी गई है, उसको लिंक किया गया है बाकी के स्केड्यूल्स के साथ भी और वो रेफरेंसेस वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसको पढ़ना भी काफी कॉम्प्लेक्स है। ये ऐसे नहीं है कि बस आपने एक बुक पकड़ी और उसको पढ़ना शुरू कर दिया, बल्कि आपको इसके लिए बड़ा हार्ड होना पड़ेगा कि भाई ये चीज यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उसका रेफरेंस आगे है। तो यू नीड टू गो डाउन फॉर द रेफरेंसेस एंड कैलकुलेशंस। सो फर्स्ट स्केड्यूल जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का है ये रेट्स से रिलेटेड है। जितने भी इनकम टैक्स रेट्स हैं वो इस फर्स्ट स्केड्यूल में अवेलेबल हैं। वो सैलरीड पर्सन के रेट्स है, वो बिजनेस इंडिविजुअल के हैं या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हैं, कैपिटल गेन के हैं, प्रॉफिट ऑन डेट के हैं। प्रॉफिट ऑन डेट मीन इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। तो सारे रेट्स जो है वो आपके फर्स्ट स्केड्यूल में है। सेकंड स्केड्यूल आपको एग्जम्पशंस एंड टैक्स कंसेशंस के बारे में बताता है। इसी तरह रेट अलाउंसेस है, रूल्स फॉर इंश्योरेंस बिजनेसेस हैं। इसी तरह प्रोविडेंट फंड, बैंकिंग कंपनी के बारे में क्या रूल्स हैं, कैपिटल गेन्स ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज क्या है, ट्रेडर्स फॉलिंग अंडर सेक्शन 99A के बारे में 9th स्केड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद 10th स्केड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया। फिर जो रूल्स फॉर पर्सन नॉट अपीयरिंग इन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट है। सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा मतलब उसको नवाजा गया है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमी। और इसके बारे में इसके बाद हम टैक्स ऑन इंपोर्ट स्टेजेस के बारे में नया 12th स्केड्यूल अनाउंस किया गया है। सो यहाँ पे मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करूंगा, हाउ मेनी ऑफ यू know about the active taxpayers or active taxpayer list? So what do you know about the active taxpayer list?
So the concept of active taxpayer list was introduced in 2019. इससे पहले तब फाइलर और नॉन फाइलर का सारा कॉन्सेप्ट था. From Finance Act 2019 एक्टिव टैक्सपेयर लिस्ट का न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया. इसका मतलब ये है कि जो अपनी करंट लायबल टैक्स रिटर्न्स पूरी की पूरी फाइल करेंगे, they will be appearing in active taxpayer list, and those जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइलिंग तो कर रहे हैं लेकिन करंट लायबल इनकम टैक्स फाइल नहीं की, that will be excluded from the active taxpayer list और उनको डबल टैक्सेशन का सामना करना पड़ेगा. So लोग क्या करते थे कि अपनी पिछले साल की रिटर्न फाइल की, इस साल की रिटर्न फाइल नहीं की, तो वो कहते थे कि जी हम तो फाइलर हैं. तो इस वजह से फाइलर और नॉन फाइलर के कॉन्सेप्ट को खत्म करके एक्टिव टैक्सपेयर लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. हमारे पास 5 मेजर हेड्स ऑफ इनकम है. सैलरी या एम्प्लॉयमेंट इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. Income from property is basically related to rental income only, so it exclude all the gains. और आप अगर प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डील नहीं होती. आप अगर प्रॉपर्टी इन्वेस्टर या प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं तो यू विल बी फॉल इन बिजनेस इनकम. सो बिजनेस इनकम में हर तरह की इनकम आती है, जो भी आप ट्रेड के थ्रू, सर्विसेज प्रोविजन के थ्रू या किसी भी तरह से आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी इनकम को बिजनेस इनकम में कंसिडर किया जाता है. इसी तरह कैपिटल गेन्स के बारे में आप सबको पता है कि जब आप कोई भी अपना एसेट सेल करते हैं और उसके ऊपर अगर आपको कोई भी गेन आता है तो दैट विल बी कैपिटल गेन, और उसको पाकिस्तान में भी टैक्सेबल बना दिया गया है. इट वाज नॉट टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर्स, बट इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि कैपिटल गेन्स को भी टैक्स किया जा सके. और ऊपर के जितने भी 4 हेड्स हैं उनमें जो इनकम कवर नहीं होती उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाया गया. So let's start with the salary income. As we all know, the employment income is salary income. अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आप जॉब में हैं और आपको कोई सैलरी मिल रही है, कंसिडरेशन रिसीव हो रही है फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और परफॉर्मेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक ड्यूटी, तो उस इनकम को सैलरी कंसिडर किया जाता है. सेम इसी तरह ही यूके टैक्सेशन में भी बताया जाता है. और इसके लिए मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, वो सेम है जैसे कि यूके में है कि एम्प्लॉय के पास टोटल डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होती, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज होता है, इसके अलावा उसकी इन्वेस्टमेंट बीच में जीरो होती है, और सैलरीज जो हैं वो किसी को खुद से पे नहीं कर रहा होता बल्कि वो सैलरीज ले रहा होता है. अब इधर बात ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ज्यादा मेजॉरिटी सैलरीड इंडिविजुअल्स की है जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं. उसकी रीजन ये है कि उनका टैक्स एट सोर्स कटता है, मतलब उनकी विद होल्डिंग होती है अंडर सेक्शन 149. इस वजह से ज्यादा आपको टैक्स फाइलर्स या एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में सैलरीड इंडिविजुअल नजर आते हैं. अब अगर हम बात करें कि सैलरी में क्या क्या चीजें आती हैं, तो वो यहाँ से डिफरेंसेस स्टार्ट होते हैं हमारे फ्रॉम यूके टैक्सेशन, क्योंकि यूके के अंदर सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम और बोनस इनकम और इसके अलावा अगर कोई पर्क्स एंड बेनिफिट्स जो प्रोवाइड की जा रहे हैं वो टैक्सेबल है. अब यहाँ पे भी सेम वही चीजें चलती हैं, मतलब अगर आपने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया है तो उसका बेंचमार्क रेट 10% है, वो टैक्सेबल होगा. अगर आपको जो गिफ्ट्स मिल रहे हैं, अब गिफ्ट्स के अंदर ये है कि अगर आपको कोई करंट एम्प्लॉयर जो है वो गिफ्ट दे रहा है तो दैट इज आल्सो टैक्सेबल. अब दूसरे केस के अंदर अगर आपको कोई आपका पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर, मतलब जिसके पास अभी आपने जॉब करने जाना है, वो आपको कोई गिफ्ट देता है तो वो भी टैक्सेबल है. और अगर आपको कोई एक्स एम्प्लॉयर जो है वो भी कोई गिफ्ट देता है तो दैट इज आल्सो टैक्सेबल. अब एक्सपेंडिचर्स जो आप करते हैं किसी स्पेसिफिक ड्यूटी के लिए, वो भी टैक्सेबल है. अब इधर ये भी चीज है कि अगर आपको परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए कोई इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो उस केस के अंदर 2 तरह के चीजें आती हैं. एक चीज ये है कि जो आपको इक्विपमेंट प्रोवाइड किया गया है उसको अगर एम्प्लॉयर अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एज एक्सपेंस चार्ज करता है
तो दैट इज नॉट टैक्सेबल फॉर यू। बट अगर वो उसकी रीइंबर्समेंट आप लेते हैं और उसके बाद एम्प्लॉयर अपने अकाउंट्स में उसको एक्सपेंस आउट नहीं करता, तो दैट इज बेसिकली योर बेनिफिट और वो टैक्सेबल होगा। इसके साथ अगर आपको कोई हेल्पर या ड्राइवर भी प्रोवाइड किया जाता है या प्रेमिसेस प्रोवाइड की जा रही हैं फॉर रेजिडेंस पर्पस, दैट इज आल्सो टैक्सेबल इन पाकिस्तान। सो जी सब कुछ टैक्सेबल है। अच्छा, अब आप यहाँ पे मुझे ये बताएं कि आपको क्या डिफरेंसेस नजर आते हैं अगर आप पाकिस्तान के टैक्स को देखें और यूके टैक्सेशन को देखें फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट इनकम। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन माइलेज पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे कार जो आपको प्रोवाइड की जा रही है वो आपके टैक्सेबल है। पे डिडक्शन पाकिस्तान में नहीं है। अब पे डिडक्शन असल में ये दूसरा नाम है विदहोल्डिंग टैक्स का। अब विदहोल्डिंग टैक्स यहाँ पे करता है अंडर सेक्शन 149 टैक्स एट सोर्स। 149 के अंदर अभी हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो आपको स्लैब्स दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग एनुअल सैलरी कैलकुलेट की जाती है और उसको डिवाइडेड बाय 12 करके जो अमाउंट ऑफ टैक्स बन रही है वो हर मंथ डिडक्ट की जाती है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अच्छा, अब यूके में तो जो इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाता था फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी वो टैक्सेबल नहीं था, वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स था। जैसे कि अगर कोई गार्ड है और उसने मतलब प्रेमिसेस पे ही रहना है तो उसकी जो रेजिडेंस है वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में उसको टैक्स किया जाता है इफ इट इज नॉट एक्सपेंस आउट इन एम्प्लॉयर्स अकाउंट्स। व्हाट व्हाट डज दिस इम्प्लाइड, और इसको आप कैसे देखते हैं कि यूके में ये टैक्स होना चाहिए, क्या ये फेयर है? तो यही बात है कि आपको कई चीजें मिलेंगी जिसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि कई चीजें टाइम बाय टाइम यहाँ पे इम्प्रूव हो रही हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द सैलरी इनकम। आप टैक्स स्लैब्स देख रहे हैं कितने ज्यादा है। 4 स्लैब्स की बजाय पाकिस्तान में आपको तकरीबन 12 या 13 स्लैब्स प्रोवाइड किए जाते हैं सैलरी इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि टैक्स होते हैं फ्रॉम 0% टू 35%। तो व्हाट डू यू से अबाउट के 35% ऑफ टैक्स, क्या ये टैक्स बहुत ज्यादा नहीं है या कम है? Okay, so the fact was in 2018 the slab rate was equal to 8 और इसके अंदर जो लिमिट थी फॉर एग्जेम्प्ट इनकम दैट वाज 400,000 रुपीस, बट इट इंक्रीज्ड टू 600,000 रुपीस। 6 लाख रुपया सालाना का मतलब है 50,000 रुपया महाना। अब जो इंसान या जो भी पर्सन पाकिस्तान में 50,000 पर मंथ अर्न कर रहा है उसको कोई टैक्स नहीं देना, उसकी किसी किस्म की विद होल्डिंग टैक्स की डिडक्शन नहीं होगी। बट आफ्टरवर्ड्स 12 लाख रुपए तक मतलब 100,000 पर मंथ इज टैक्स्ड एट 5 रुपीस ऑफ अमाउंट अबव देन 600,000 रुपीस। मतलब अगले 6 लाख रुपए पे आपको 5% टैक्स देना है विच इज इक्वल टू 30,000 रुपीस। इसी तरह ये स्लैब्स जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है इनकम टैक्स रेट्स भी बढ़ते जाते हैं। तो ये इतने ज्यादा स्लैब्स जो हैं ये इसको मोर कम्प्लेक्स और काफी मतलब जिसके लिए ये टैक्स नया है वो
काफी डर जाता है इसको देख के कि यार इतने ज्यादा मैं कहाँ पे फॉल करता हूँ। एंड व्हेन यू गो थ्रू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और फर्स्ट कैजुअल में जिस तरह ये लिखा हुआ है वो कंफ्यूजिंग है। सो आई मेड इट सिंपल फॉर यू। तो let's talk about the income from property. Income from property is the consideration received by owner of property against the right to use of the property is called rent. मतलब आप किराए पे घर दे रहे हैं और वो जो किराया रिसीव कर रहे हैं that is income from property. Now the thing I want to mention here कि आपकी हर तरह की इनकम अलग से टैक्स होती है। This is not simple as that in UK कि आप सब इनकम को ऐड करते हैं और अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं एंड देन यू अप्लाई कि जी मैं हायर बैंड में फॉल करता हूं तो मैं 45% पे टैक्स दूंगा। यहाँ पे ऐसे नहीं है, आप एम्प्लॉयमेंट इनकम को अलग से टैक्स करेंगे और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को अलग से टैक्स करेंगे। फॉर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए की आपके पास टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है। अगर आप 2 लाख रुपए से कम सालाना रेंट अर्न करते हैं तो दैट विल बी टैक्स एट 0%। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्सक्लूड करता है एमिनिटीज को, मतलब आप कोई जो आपके प्रेमिसेस जिनको आपने रेंट आउट किया है वहां पे किसी किस्म की फैसिलिटीज दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हैं तो वो इनकम रेंट के अंदर शामिल नहीं होगा, बल्कि उसको अलग से इनकम कंसीडर किया जाएगा और उसको टैक्स भी अलग से किया जाएगा। इसी तरह आप अगर कोई फैक्ट्री जो है उसको आप रेंट आउट करते हैं तो दैट विल बी कंसीडर्ड योर बिजनेस इनकम, नॉट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाज द थिंग जिसको अलग से टैक्स किया जाता था, तो इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करने के लिए इन 2018 4 मिलियन की स्लैब लगाई गई कि अगर कोई पर्सन और इंडिविजुअल 4 मिलियन से ज्यादा का रेंट अर्न कर रहा है इन द ईयर तो वो ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है कि दैट इज हिज रेगुलर इनकम। मतलब यहाँ तो अगर वो सैलरीड इंडिविजुअल है तो सैलरी के रेट लगेंगे और अगर वो बिजनेस इंडिविजुअल है तो उसके ऊपर बिजनेस के रेट लगेंगे। अब ये इन फाइनेंस एक्ट 2020 इस लिमिट को खत्म कर दिया गया है। अबव देन 200,000 अगर आप 2 लाख से ज्यादा का रेंट अर्न कर रहे हैं तो आप अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को आपकी मर्जी है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रखें और इसको कन्वर्ट कर लें रेगुलर इनकम में। So in your opinion, what is a suitable method for income from property? Is it taxed separately or under the regular income? So those guys who are saying separately, please elaborate your decision. आप इसको क्यों separately tax करना चाहते हैं? And for those who said under regular income, वो भी अपनी reason explain कर दें। Okay, so it vary according to the case. अगर आपकी रेगुलर इनकम ज्यादा है तो इसको अलग से टैक्स की ऑप्शन रखें। अगर आपकी रेगुलर इनकम कम है और आप ज्यादा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से अर्न कर रहे हैं तो आप इसको रेगुलर इनकम में इंक्लूड कर लें। क्यों? रेगुलर इनकम में इंक्लूड करने से आपको एक्सपेंसेस अलाउड हो जाएंगे और अगर आप इसको सेपरेट ही रखेंगे तो आपकी नेट रिसीट्स आर योर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मतलब अगर आप 3 लाख रुपए रेंट ले रहे हैं तो नो अलाउंस फॉर योर एक्सपेंसेस, आप ना तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे निकाल सकते हैं उसमें से, बल्कि 3 लाख के ऊपर डायरेक्ट
टैक्स लगेगा। तो अगर आप इसको रेगुलर इनकम में कन्वर्ट करते हैं तो यू विल बी अलाउड टू डिडक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है इंडिविजुअल के केस में और कंपनी के केस में। कंपनी को डिडक्शंस अलाउड होती हैं। सो जो डिडक्शंस अलाउड हैं वो स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी आपको, जैसे रिपेयर्स अप टू 1/5 ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स बिफोर एनी डिडक्शन इज अलाउड। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर किसी किस्म का प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पे किया जा रहा है तो दैट इज अलाउएबल एक्सपेंस। लोकल टैक्स चार्ज और सेस पे किया जा रहा है तो दैट इज allowable expense other than income tax because income tax is adjustable against your income। अगर आप कोई भी ग्राउंड रेंट पे कर रहे हैं तो allowable expense। इंटरेस्ट चार्जेस पे कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन के लिए तो allowable expense। expenditures not exceeding 6% of the rent chargeable to tax are allowable expense for specifically company। अगर आप लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका डिस्प्यूट हो जाता है अपने टेनेंट के साथ और उसको खाली करवाने के लिए कोई लीगल चार्जेस लगते हैं, आपका जो लीगल चार्जेस हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट दैट इज अलाउएबल एक्सपेंस। अगर आपने इनकम रिकॉर्ड कर ली है एंड दैट विल बिकम योर बैड डेट तो आपके लिए अलाउएबल है कि आप उसको डिडक्ट कर दें। यस वन लेट्स हैव सम क्वेश्चंस हियर। Any questions? Individual property income. It is too early to ask this question, but I answer this. Individual perspective में other than business income आपकी सारी की सारी income is based on cash basis। तो अगर आपने रेंट रिसीव नहीं किया, पैसे रिसीव नहीं किए तो आप उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। कैश बेसिस इंडिविजुअल्स के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल और बिजनेस अर्निंग बिजनेस इनकम नहीं ले रहे अदर देन बिजनेस इनकम है आपकी, लाइक सैलरी आप ले रहे हैं कैश रिसीट बेसिस पे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑन रिसीट बेसिस, capital gain on receipt basis and income from other sources are also receipt basis। so bad debt उसमें आ ही नहीं सकता। okay, very interesting question from Muhammad Rafi, but I'll answer your question in next slot in business income। फॉरेन एक्सचेंज में अगर आपकी इनकम आ रही है, सैलरी इनकम है, तो आप उसको पाकिस्तान रुपीस में कन्वर्ट करके टैक्स करेंगे अनलेस और अनटिल इट इज कंसीडर्ड एज फॉरेन रेमिटेंस। वो एक अलग टॉपिक है। आई हैड क्वेश्चन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट on property will be allowed because it would have been charged in individual basis। No, my friend, income from property tax rate are different, which is here till 200,000 it is exempt, from 200,000 onward it is taxable at the following rates। so पाकिस्तान में जितनी भी इनकम है for individual perspective and AOP perspective, the rate for taxation is 35%। it is directly not 35%, थोड़ा सा कम होता है। उसकी रीजन ये है कि लोअर स्लैब्स पे आपको लोअर रेट्स लग रहे हैं, तो when you reach at the higher slab in Pakistan the rate is not 35%, it is actually lower slabs पे lower rates लगने की वजह से it cumulative effect is 30 to 34%। so let's talk about the income from property other aspects। आपको किसी किस्म के जब एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है तो आपकी रिसीट जो है वो
पूरी होगी उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। फॉर एग्जांपल इफ यू आर अर्निंग 300,000 फ्रॉम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो यू विल बी टैक्स एट 5% ऑन अबव अमाउंट देन 200,000, तो आपका टोटल टैक्स 10,000 रुपीज होगा। आपको किसी किस्म के एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है क्योंकि आपने इसको सेपरेटली टैक्स के लिए ऑप्ट किया है। तो expenses allowed ना होना, is it good, fair or not? What do you guys say? Okay, the Adil Shafi Ahmed, is rent income tax FTR for individual? So I describe FTR, MTR and NTR in this. So when you talk about the regular income, it will be considered as NTR, जिस पे स्लैब रेट सप्लाई होंगे, आपके इनकम टैक्स एडजस्ट होंगे और आपको नॉर्मल टैक्स किया जाएगा। बट व्हाट इज एफटीआर? एफटीआर कॉन्सेप्ट इज लाइक खत्म हो गया है फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2020, इसको एमटीआर में कन्वर्ट कर दिया गया है। एफटीआर मींस फाइनल टैक्स रिजीम। इसके अंदर होता ये था कि जो भी आप एडवांस टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स जो पे कर चुके होते थे वही आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी होती थी, और आपको एट द एंड ऑफ एनुअल ईयर आपको कोई मजीद टैक्स नहीं पे करना होता था। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट सेक्शन 153, तो अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं और आपके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स सप्लाई हो रहा है 4.5% पे, या आप इंपोर्ट्स कर रहे हैं और इंपोर्ट स्टेज पे आपके ऊपर 6% टैक्स अप्लाई हो रहा है, तो दैट इज योर फाइनल टैक्स लायबिलिटी। और इसके बाद आपको किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं देना, आपकी चाहे जितनी मर्जी इनकम हो, प्रॉफिट हो, उसके ऊपर और कोई टैक्स नहीं देना। सो इस कॉन्सेप्ट को बड़े ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, इसी वजह से एंटी अब्यूसिव रूल आया कि एफटीआर को एमटीआर में कन्वर्ट कर दिया गया, विच इज मिनिमम टैक्स रिजीम। मिनिमम टैक्स रिजीम ये कहता है कि आपने जो 4.5% पे टैक्स अपना विद हेल्ड करवाया था, दैट इज नॉट योर फाइनल टैक्स लायबिलिटी, इन एक्चुअल इट इज योर मिनिमम टैक्स, मतलब आपने इतना तो टैक्स देना ही देना है। अब अगर आपकी इनकम जब स्लैब से कैलकुलेट करते हैं तो वो 4.5% से ज्यादा का टैक्स बन रहा है, तो आपको जो हायर ऑफ है वो आपको पे करना है, राइट? सो I think it's clarify the concept of NTR, FTR and MTR. My friend, property tax is a separate thing. हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स इज सेपरेट, और इनकम टैक्स के अंदर जो रेंटल इनकम है आपकी, उसके ऊपर जो टैक्स किया जाता है दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। So let's move towards the business income. Business income means any trade, commerce, manufacturing, profession, vocation or adventure or concern in nature of trade, commerce, manufacture, profession or vocation but does not include employment. Matlab business is separate thing from employment under subclause 10 of section 2 of Income Tax Ordinance 2001. अब business individual वो पर्सन हो गया जो अपना बिजनेस रन कर रहा है और उसकी इस बिजनेस इनकम को अलग से टैक्स किया जाता है। सो बिजनेस इंडिविजुअल यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयमेंट में फर्क वही है कि उसके पास कंट्रोल्स डिफरेंट है, इसके पास कंट्रोल डिफरेंट है, ये सैलरीज पे कर रहा है, इसने अपने फंड्स इन्वेस्ट किए हैं और इसके पास डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पावर्स है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो बिजनेस इंडिविजुअल है क्या वो in respect of partner of AOP or sole proprietor of the business, क्या वो अपने ही बिजनेस से सैलरी ले सकता है?
The answer is no. Partner of AOP. AOP is Association of Persons, जिसको हम UK लैंग्वेज में या अपनी लैंग्वेज में या कॉमन लैंग्वेज में पार्टनरशिप के तौर पे जानते हैं। एक पार्टनरशिप का पार्टनर और किसी बिजनेस का ऑनर इन सोल प्रोप्राइटरशिप, नॉट द कंपनी, वो अपने ही बिजनेस से सैलरी नहीं ले सकता। वो जो भी अपने बिजनेस से लेगा दैट इज ड्राइंग्स, नॉट द सैलरी। सो इसकी रीजन ये है कि उसने अपना बिजनेस सेटअप लगाया है, वो उस बिजनेस को रन कर रहा है और कंपनी नहीं है, उसका अपना बिजनेस है, तो उधर से वो जो भी लेगा उसकी कैपिटल ड्राइंग्स होंगी, ना कि उसकी सैलरी होगी। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के रूल्स हैं, हम इसको वाई में नहीं लेके जा सकते, बस ये बन गए हैं। सैलरी इस वजह से भी नहीं अर्न कर सकता क्योंकि सैलरी अगर वो अर्न करेगा वहां से तो बेसिकली उसके ऊपर उसकी अपनी ही एक रिटर्न जानी है। जब उसकी अपनी रिटर्न जानी है तो वो उसी में सैलरी इनकम को भी डाल रहा होगा और बिजनेस इनकम को भी डाल रहा होगा। अब आप जब इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको वो टैक्स करता है जो भी इनकम आपकी ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग। इफ यू आर अर्निंग सैलरी एज वेल एज बिजनेस इनकम तो उसको वो मर्ज करके देखेगा कि कौन सी इनकम ज्यादा है और वो वाले स्लैब्स अप्लाई कर देगा। द स्लैब्स फॉर बिजनेस इनकम एंड सैलरी इनकम आर डिफरेंट, लेकिन वहां पे आपके प्रोपोर्शनेट बेसिस पे देखा जाता है कि विच इनकम इज हायर और अकॉर्डिंग टू दैट आपको वो स्लैब्स लग जाते हैं। सो बिजनेस इनकम के लिए स्पेशल प्रोविजन है कि वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग अपनी यूज कर सकता है, अक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस। अब अगर उसने कैश बेसिस को सिलेक्ट कर लिया और अब वो समझता है कि नहीं जी मुझे अब तो अक्रूवल बेसिस पे जाना है, तो उसको रिटर्न अप्रूवल लेनी पड़ेगी फ्रॉम कमिश्नर। उसको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी और उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा कि ही इज चेंजिंग हिज अकाउंटिंग मेथड। सो इन योर ओपिनियन व्हाट इज बेटर accounting method for income other than business? ये बेसिकली पीछे कवर हो चुका है, जैसे हमने बताया था कि बिजनेस इनकम के अलावा एक पर्सन जितनी भी इनकम अर्न कर रहा है सेम टाइम पे वो कैश बेसिस पे चलेंगी, ना कि अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस इनकम चलेगी, जो आपका बिजनेस है उसकी सारी ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू अप्रूवल चल सकती हैं। अगर आप उसको भी ऑप्ट करते हैं कैश बेसिस पे तो आपका सारा का सारा जो इनकम है दैट विल अकॉर्डिंग टू द कैश बेसिस रूल। So let's talk about business income in relation to expenses. तो तमाम के तमाम expenses जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, जैसे आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, मटेरियल कॉस्ट है, उसके अंदर आपकी यूटिलिटीज हैं, इसके अलावा जो सैलरीज जा रही हैं, इसके अलावा अदर जो भी एक्सपेंसेस आप इनकर कर रहे हैं वो सारे के सारे अलाउड हैं अदर देन योर पर्सनल एक्सपेंसेस। आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि वो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं एंड दैट विल बी डिडक्टेड आफ्टर योर इनकम इज टैक्स्ड। सो अब डिडक्शंस क्या अलाउड नहीं है? अब आपने कोई टैक्स दिया है तो वो अलाउड डिडक्शन नहीं है। उसकी रीजन ये है दैट इज योर एसेट। आप एडवांस टैक्स देते हैं डिफरेंट कंडीशंस में। आप बिजनेस करते हुए एडवांस टैक्स पे करते हैं अंडर 153 सेक्शन, जो कि कवर किया जाएगा विदहोल्डिंग टैक्स के सेशन में, कि सप्लाई ऑफ गुड्स किया और आपका टैक्स विदहल्ड हुआ 4.5% पे। इसके अलावा आपके मोबाइल के ऊपर टैक्स विदहल्ड हुआ, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर हुआ, प्रॉपर्टी परचेज के ऊपर हुआ। इसके साथ साथ डिफरेंट जगह के ऊपर जो जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर जो भी टैक्स विदहल्ड होगा दैट इज एडजस्टेबल अगेंस्ट योर इनकम टैक्स। तो वो आपका एसेट है, ना कि आपका एक्सपेंस है। इसी तरह जो मतलब पॉलिटिकल सपोर्ट है और ब्राइबरी है दैट इज नॉट योर एक्सपेंस। उसको आप इनकम में ऐड बैक करेंगे और उसके ऊपर टैक्स भी आप पे करेंगे। इसी तरह प्रोविडेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं दैट इज आल्सो डिडक्शंस नॉट अलाउड। फाइन और पेनल्टीज आपने कोई भी पे की हैं तो वो भी ऐड बैक होंगी आपकी इनकम में।
आप पर्सनल एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं और उसको क्लेम करते हैं अपने बिजनेस से कि जी ये तो मेरा बिजनेस है, वो ऐड बैक होंगी आपकी इनकम में क्योंकि वो आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हैं। अब आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करते हैं तो दैट इज एक्चुअली योर एसेट नॉट योर एक्सपेंस, तो आपने उसको इनकम में ऐड बैक करना है। अब सेक्शन 21 जो है वो काफी ज्यादा आपको डिटेल्स देता है, बट थिंक अबाउट द कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन को डिस्करेज करने के लिए सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया कैश लिमिट्स को कि आप कोई भी एक्सपेंडिचर एक वेंडर के साथ ट्रांजैक्शन के दौरान आप एक वेंडर को 25,000 इन अ ईयर उससे ऊपर थ्रू कैश पे नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो दैट विल बी एडेड बैक टू योर इनकम, एंड इनकम में ऐड करने की वजह ये है क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता एंड देयर इज चांस ऑफ मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन जो सी है उसको रोकने के लिए और सबको टैक्स नेट में लाने के लिए बेसिकली कैश एक्सपेंडिचर्स को डिस्करेज किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक कैप ये भी लगाई गई है कि जो सिंगल हेड ऑफ योर अकाउंट जैसे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तो उसमें आप एक लिमिट लगा दी गई कि 2.5 लाख से ऊपर आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस में या किसी भी और हेड में 2.5 लाख से ज्यादा के कैश एक्सपेंसेस नहीं कर सकते। आपको बैंकिंग को प्रमोट करना है, आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू पे कर जो है अपनी ट्रांजैक्शन राउट करनी है। उसकी रीजन ये है कि आपको सबको टैक्स नेट में लाने के लिए उसकी विदहोल्डिंग करनी पड़ेगी एंड 25,000 इज द लिमिट बिकॉज अगर आप सर्विसेज की बात करें विदहोल्डिंग टैक्स में तो उसके ऊपर 30,000 का थ्रेशोल्ड है। 30,000 से ऊपर आप पर एनम में जाते हैं किसी भी वेंडर के साथ ट्रांजैक्शन पे तो आपको उसका टैक्स विदहोल्ड करना है। इसी तरह 75,000 की लिमिट है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। आप अगर 75,000 से ज्यादा किसी एक वेंडर के साथ एक साल में ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उसका विदहोल्डिंग टैक्स करना है ताकि विदहोल्डिंग टैक्स आपका प्रॉपर चले। विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो प्रॉपरली डिफाइन किया जाएगा इन विदहोल्डिंग टैक्स सेशन। अब 2.5 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन अगर आप कैश में करते हैं इन सिंगल हेड ऑफ अकाउंट तो दैट विल बी एडेड बैक टू योर इनकम। मींस अगर आपका प्रॉफिट पहले था फॉर एग्जांपल आपने 3.5 लाख की एक सिंगल हेड ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन की है तो आप 1 लाख से ज्यादा एक्सीड कर जाते हैं कैश ट्रांजैक्शन करने पे तो ये 1 लाख आपकी इनकम में ऐड बैक हो जाएगा। ये करेगा क्या? अगर फॉर एग्जांपल आप 12 लाख रुपए पे थे और अब आपका जो इनकम है उसको 13 लाख कर दिया गया तो यू विल बी फॉल इनटू द नेक्स्ट स्लैब और आपको हायर रेट टैक्स लगेगा। तो इसको डिस्करेज करने की सिंपल रीजन यही है कि थ्रू बैंकिंग चैनल जाने की वजह से आपकी प्रॉपर बुक कीपिंग होती है, आपका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होता है, आप और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होती हैं वो थर्ड पार्टी वेरीफाइबल भी होती हैं। इसी तरह सैलरी के लिए भी थ्रेशोल्ड डिफाइन किया गया कि 25,000 से ऊपर की जो सैलरीज हैं वो आप थ्रू बैंकिंग चैनल पे करेंगे, थ्रू कैश पे नहीं करेंगे। अगर आप थ्रू कैश पे करेंगे तो दैट विल बी एडेड टू योर इनकम। तो जो इस तरह के जो कैप्स लगाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हैं कि डिस्करेज की जा सके कैश ट्रांजैक्शन क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। So let's come to your questions now. Yes, what is the difference between third last and second last point? Third last and second last point defines that कि आपकी single head of account में जो transaction है, for example repair and maintenance में वो उसकी लिमिट आपकी 2.5 लाख है, लेकिन जो second last point है that is defined कि आप एक सिंगल वेंडर के साथ एक साल में 25,000 रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन कैश में नहीं कर सकते। Hope this will answer your question. Yes, it is for whole year, and our year is started from 1st July and ended on 30th June. इसके अलावा कुछ कैश ट्रांजैक्शन जो है विद रिस्पेक्टिव ऑफ देयर अमाउंट इज अलाउएबल, जैसे कि आपने टैक्सेस पे करने हैं, आपने यूटिलिटीज पे करनी है, जो आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं वो कैश ट्रांजैक्शंस आपकी अलाउड है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द अदर इंडिविजुअल्स तो आपको ये कैप्स लगा दी गई हैं ताकि आप इन्हीं कैप्स के अंदर रह के काम कर सकें कैश के अंदर।
हाउ मच पेनल्टी फॉर कैश नॉन कंप्लाइंस, जैसे कि मैंने बार बार कहा कि इट विल बी एडेड बैक टू योर इनकम, और इनकम में ऐड करने के बाद ये आपके लिए टैक्सेबल बन जाएंगी। I want to unmute this Farjad A. Siddiq. How to unmute it? How to unmute him? Attendees. Farjad A. Siddiq. So Farjad, I'm looking for you to unmute you. Okay, here is he. You are unmuted now. And is Assalamualaikum. voted by organizer. Assalamualaikum Farjad. Walaikum assalam. How are you? So I can hear you now. Assalamualaikum. Walaikum assalam. How are you? Alhamdulillah. You tell. जी सर. कैसी चल रही है लाइफ आपकी? Alhamdulillah, it's fantastic. क्या काम करते हैं आप? सर मैं फार्म में होता हूँ छोटी मोटी. अच्छा यार आप ना टैक्स वाले लग रहे हैं मुझे. नहीं मैं तो आपसे वैसी एक चीज पूछ रहा था, अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो क्योंकि हेड्स तो आप देखें. हाँ मुझे लग रहा है कि आप में टैक्स डिपार्टमेंट में हैं और आप ना डिफरेंट मेथड्स जो से हैं वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है. सही बोल रहे हो. एथिकली रॉन्ग, और एज एन अकाउंटेंट हमें इन चीजों को रोकना चाहिए, हमें इन चीजों के लिए विसल ब्लोइंग करनी चाहिए. उसकी रीजन ये है कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर टैक्स इवेजन, बट हम कोड ऑफ कंडक्ट के साथ अटैच्ड है और हमें कोड ऑफ कंडक्ट की कंप्लायंस करनी है. सो एन अकाउंटेंट इज द पर्सन के जिसको मतलब हम ACCA के साथ IFAC के कोड्स के साथ भी मतलब अटैच्ड है, और हमें अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को भी मेंटेन रखना है. इसके अलावा हमें टैक्स इवेजन से बहुत ज्यादा बचना है. तो टैक्स इवेजन ना सिर्फ हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन करती है, बल्कि मतलब ये भी है कि आप इकोनॉमी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं एक तरह का. सही. अच्छा सर मेरा एक पॉइंट था इसके ऊपर मैं रेस करना चाह रहा था. असल में इश्यूज ये आ रहे हैं कि एक बिजनेस जो है ये तो गवर्नमेंट ने अपने लॉज बना दिए हैं ना, बाय लॉज के, जो आप 2.5 लाख से ऊपर कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते. अब कितने ऐसे बिजनेसेस हैं जो हम कंटिन्यूअसली डेली लाइफ में अपने फेस करते हैं, दैट दे हैव एन एक्सपेंस ऑफ कैश. फॉर एग्जांपल आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात कर लें, वहां पे मोस्टली जो है वो ट्रक अड्डे हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, दे डोंट नो अबाउट द चेक इवन दो दे डोंट हैव एन अकाउंट. ठीक है, सो हाउ वी विल मैनेज दैट. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल स्पेयर पार्ट्स, दीज आर द थिंग्स. इसके ऊपर एक मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें मुझे. कराची टैक्स बार जो है उसने इस हवाले से एक FVR को लिखा हुआ भी है कि 2.5 लाख जो है कैश की लिमिट, इट इज नॉट फेवरेबल इन फॉर बिजनेसेस एटलीस्ट, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी इकोनॉमी इज नॉट प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड. 100% लिमिट है अभी. जैसे सेल्स टैक्स की इंटीग्रेशन चल रही है काफी कंपनीज में, तो उसके अंदर बिग जायंट्स इंटीग्रेट हुए हैं. अब ये बोल रहे हैं कि अब आप छोटी छोटी कंपनीज को, छोटे छोटे इंडिविजुअल्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इट टेक्स टाइम. लेकिन ये जो उन्होंने लिमिट लगा दी है ये काफी इशू क्रिएट कर रही है, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा आपसे डिस्कशन. हाँ अब ये देखें ना कि फ्रॉम लास्ट डेकेड अगर आप टैक्स के रूल्स को देखें तो वो काफी रैपिडली चेंज हो रहे हैं और ड्रास्टिकल चेंज है. जैसे कि अगर मैं आपको यही एक्सपेंडिचर्स की लिमिट बताऊं तो ये 50,000 थी टिल लास्ट ईयर, जब आप फाइनेंस इसको 2.5 लाख रुपए की लिमिट की गई. एंड फॉर कैश एक्सपेंसेस द लिमिट वाज 10,000. एंड तो फिर 3 बंदों के सिग्नेचर का है, 4 तक करना है ना मेरे को. हेलो आप एक काम करें, एक लाइन जी जी ऐड जी कर जी. लें बस. अच्छा दूसरी बात ये है कि 15,000 थी, एक्सपेंडिचर्स पेड इन कैश की लिमिट 10,000 थी. सो इन चीजों को इंक्रीज किया जा रहा है और फ्यूचर प्लानिंग में हो सकता है कि आप मतलब कार्ड ये प्लास्टिक मनी पे शिफ्ट हो जाएं. तो अभी बेसिकली ये बॉटलनेक्स जरूर है, लेकिन ये बॉटलनेक्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म भी होंगे और हम कंप्लायंस की तरफ भी आएंगे. जो आपका पॉइंट है बेसिकली मुझे सुबह अच्छा एक
छोटी सी मैं और ऐड करना चाहूंगा चीज कि अभी मैं जो है बिजनेस रिकॉर्डर में पढ़ रहा था, वहां पर ये लिखा हुआ है कि FBR wants everyone's NICs एंड बैंक बैलेंसेस, और काफी वो डेटा एनालिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। ये अभी करंट ही आज ही की न्यूज है। तो अब ये जो कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, ये एक बहुत जो है ना मतलब डिजास्ट्रिक चेंज ले आएगा बिजनेस के अंदर। Okay, अगर आप I'll explain you. So we know all the facts कि अभी तक हम 22 करोड़ अवाम में से 22 लाख लोग जो उनसे हैं वो टैक्स में रजिस्टर्ड है, बट उनको किसी ना किसी तरह से तो उनका घेरा तंग करना है ना कि उनको टैक्स नेट में लेके आया जा सके। दीज आर द पॉइंट्स के जो उनको भी इनकरेज कर रहे हैं कि कम इनटू द टैक्स नेट, और अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू डू ट्रांजैक्शंस विद यू। लाइक अगर हम बड़ी कंपनियों की बात करें तो वो इन जो लोग कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं उनके साथ बिजनेस ही नहीं करते। तो अ टाइम विल कम व्हेन एवरीवन इज सेइंग कि हमें बैंकिंग चैनल के थ्रू ही ट्रांजैक्शन करनी है। इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड वी आर नॉट हैप्पी टू डू बिजनेस विद यू। और ये टाइम बहुत रैपिडली आने वाला है, इसमें कोई टाइम इतना ज्यादा नहीं लगेगा। फ्रॉम लास्ट डिकेड अगर हम बात करें तो काफी रैपिड ट्रांजैक्शंस, और जिस तरह CNIC की कंडीशन सेल्स टैक्स पे लगाई गई, इसी तरह आपके लिए जब भी आपका ऑडिट ओपन होता है तो FPR आस्क यू कि जी आप मुझे पूरी की पूरी ट्रेल दें या उसके एड्रेसेस दें या CNIC नंबर दें। तो आहिस्ता आहिस्ता हम मूव उसी तरफ कर रहे हैं। वी हैव वेरी गुड नादरा सिस्टम के जो हर चीज के साथ इंटरलिंक हो रहा है। FPR मालूमात को इंट्रोड्यूस करवाया गया, इन टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए एमनेस्टी अनाउंस की गई। इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव्स टू लाइक इंक्रीज द टैक्स नेट, बट देयर आर सम पीपल हु आर सेइंग कि भाई नॉन फाइलर होना तो जो है ना वो तो बस ऐसे ही है कि जैसे आप बाहर बैठे हैं और अंदर जो है वो एक मतलब जो है ना वो फेंटा चढ़ रहा है। सॉरी फॉर दिस वर्ड, लेकिन चीज भी ऐसी है कि टैक्स पेयर जो एक्चुअल टैक्स पेयर है और एक्टिव टैक्स पेयर है, हरासमेंट भी उसके साथ ही है। लेकिन ये जो घेरा तंग किया जा रहा है ना, मतलब आपका 25,000 की लिमिट अभी थोड़ी सी इंक्रीज की गई है, लेकिन इसको 15,000 पे रखा गया। कैश ट्रांजैक्शन को डिस्करेज किया जा रहा है। विद होल्डिंग टैक्स हर जगह पे अप्लाई की जा रही है। इवन व्हेन यू आर परचेजिंग द लाइक प्रॉपर्टी तो आपको विद होल्डिंग टैक्स पे करना है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं उसके ऊपर विद होल्डिंग पे करना है। मोबाइल बिल के ऊपर आप विद होल्डिंग दे रहे हैं। यूटिलिटीज के ऊपर, कमर्शियल यूटिलिटीज के ऊपर आप विद होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं। तो आप एडवांस में टैक्स दे के बेसिकली आप उनको अपना रिकॉर्ड दे रहे हैं कि यू आर पेइंग टैक्स। टैक्स कलेक्शन अगर बात की जाए तो वो तो वैसे ही है, लेकिन इसको इंटरलिंक करना CNIC से बेसिकली FPR को एक डेटाबेस दे रहा है कि ये लोग ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, दे हैव मनी बट दे आर नॉट पेइंग द फाइलिंग देयर रिटर्न्स, तो इनको टैक्स नेट में लाना है। सो ये लिमिट सिर्फ इस वजह से की गई है। और टैक्स प्लानिंग के लिए जो है वो मतलब हमें गलत तरीकों का इस्तेमाल छोड़ना पड़ेगा। हमें उन तरीकों के ऊपर और उन वेज के ऊपर आना है जो हमारे लिए प्रोफेशनली और एथिकली करेक्ट है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द बिजनेस इनकम। इसमें डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन सेम यूके के लॉज की तरह ही है कि डेप्रिसिएशन रेट फॉर your business is different but tax depreciation is different. So for building it's 10%, for plant and machinery, furniture, fixture is 15%, computer and IT equipment it is 30%। और अगर आप किसी भी अपने बिजनेस एसेट को पर्सनली यूज कर रहे हैं तो उसका फेयर प्रोपोर्शनेट देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग द बिजनेस एसेट, कार ले लेते हैं, उसको 30% आप पर्सनली यूज कर रहे हैं, 70% आप उसको बिजनेस के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो आपको 70% डेप्रिसिएशन अलाउड होगी। 30% आपको अलाउड बिजनेस इनकम में से डिडक्ट करना नहीं है। इसी तरह आपको जब भी आप प्लांट एंड मशीनरी को मतलब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको 25% इनिशियल अलाउंस मिलता है। यू कैन से दैट ऑथराइज्ड माइलेज अलाउंस, लेकिन बात यह है कि आप यूके टैक्स को अलहदा रख के इस टैक्स को अलहदा से पढ़ेंगे। इफ यू आर प्लानिंग टू डू यूके टैक्स
तो आप उसको भी और इसको भी मर्ज जब करेंगे या इकट्ठा पढ़ेंगे तो यू विल बी कंफ्यूज, बिकॉज यूके टैक्स रिजीम इज डिफरेंट, पाकिस्तान टैक्स रिजीम इज डिफरेंट। पाकिस्तान के अंदर टैक्स की बेस बेसिकली जैसे मैंने शुरू में भी बताया यूके जरूर है, लेकिन इसके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें काफी चेंजेस कर दी गई हैं और कुछ ऐसे रैशनलाइज करने के लिए और काफी कॉम्प्लेक्स भी इसको किया गया है। उस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर देखें तो सिंपल एक इंडिविजुअल जो अपनी रिटर्न फाइल करना चाहता है, ही हैव टू, अगर वो बिजनेस कर रहा है, वो सैलरी भी ले रहा है और इसके अलावा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मतलब रेंट इनकम भी अर्न कर रहा है, तो यू हैव टू लाइक उसको अपनी सारी इनकम उसमें डालनी है। बट आयरिस सॉफ्टवेयर इज वेरी गुड, जो आपको हेल्प आउट करता है कि आपकी जो भी इनकम है आप उसके अंदर पुट इन करें तो वो आपको कैलकुलेशन खुद करके देता है। तो गुड इनिशिएटिव्स आर आल्सो देयर, बट देयर आर बहुत ज्यादा रूम है जिसको मतलब इम्प्रूवमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा रूम है, और उस इम्प्रूवमेंट को हर साल इंक्रीज भी किया जाता है। ऐसा रोल आते हैं उनके थ्रू कुछ इम्प्लीमेंटेशंस की जाती हैं, इसको वाइडन किया जा रहा है, बट इट नीड टाइम एज वेल एज एक्सपर्टीज कि वो लोग सीट पे बैठे जो इस सिस्टम को जानते हैं और इसके फ्लॉज को भी जानते हैं और इसको कैसे कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लीफाई करना है, ताकि जो आपका एक नॉर्मल कह लें कि जो रिटेल शॉप पे बैठा हुआ, एक छोटी सी रिटेल शॉप पे बैठा हुआ बंदा भी है, वो भी अपनी टैक्स फाइल कर सके। अभी अगर बात की जाए तो एक तो वो टैक्स हरासमेंट, जब वो टैक्स पेयर्स को देखता है, उनके साथ हरासमेंट को देखता है, तो ही फ्लू अवे कि भाई मुझे टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी। बट द थिंग विल चेंज व्हेन टैक्स बेस इज इंक्रीज्ड। अभी टैक्स बेस आपकी 22 लाख है, 22 करोड़ में से अगर इसको इंक्रीज किया जाए तो अल्टीमेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। तो लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस इनकम टैक्स रेट्स। तो सैलरी के अगर स्लैब्स की बात करें तो वहां पे 12-13 थे, और जब इंडिविजुअल इनकम या हम एओपी की बात करते हैं तो वहां पे बहुत कम स्पेस रह जाती है, आपके पास बहुत कम स्लैब्स हैं, लेकिन टैक्स रेट्स हाई हो गए हैं। जैसे अगर पहले स्लैब की बात की जाए तो आपके लिए सैलरीड इंडिविजुअल के लिए 600,000 की एग्जम्पशन लिमिट है, जबकि जब आप बिजनेस इनकम या एओपी इंडिविजुअल की बात, एओपी के पार्टनर की बात करते हैं, एओपी की बात करते हैं, तो उसके लिए 4 लाख रुपए की लिमिट है। उससे ऊपर उसके ऊपर टैक्स अप्लाई किया जाता है और टैक्स स्लैब्स छोटी हैं और टैक्स रेट्स इस तरह इंक्रीज किए जाते हैं। अगर सैलरी की बात करूं तो उधर 7.5 करोड़ रुपए पे जाके और उससे ऊपर की इनकम पे 35% टैक्स अप्लाई होता है। यहाँ पे 60 लाख रुपए के ऊपर ही आप 35% अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये क्यों ऐसे एक डिस्क्रिमिनेशन सी क्रिएट हो गई है, या बाइसनेस आप कह सकते हैं, ये क्यों किया जा रहा है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? द क्वेश्चन इज कि बिजनेस इनकम को ज्यादा रेट पे लो और कम स्लैब्स पे टैक्स किया जाता है, जबकि सैलरीड इंडिविजुअल को कम टैक्स किया जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि 7.5 करोड़ रुपए से ऊपर की सैलरी इनकम को 35% टैक्स लगता है। इसी के अकॉर्डिंग अगर बिजनेस इनकम की बात की जाए तो 60 लाख से ऊपर की आपकी इनकम को 35% टैक्स लगता है। व्हाई इज इट सो? To encourage ओके, द थिंग इज बिजनेस इंडिविजुअल के पास काफी स्पेस है और वो करता भी है कि वो अपने रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करता है, अपने एक्सपेंसेस को या तो ओवरस्टेट या अंडरस्टेट करता है अपनी इनकम को। इस वजह से उसके ऊपर हायर रेट ऑफ टैक्स अप्लाई किया जाता है। ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन नहीं है,
उसके लिए ये किया गया क्योंकि वो अपने रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करता है, फेयर प्रेजेंटेशन नहीं है उसके बिजनेस की, कैश पे ट्रांजैक्शंस कर रहा है, इसके अलावा वो मतलब अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन प्रॉपर्ली नहीं कर रहा, रिकॉर्ड्स जो प्रोवाइड उसका दिल करता है वो प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए उसको हाई रेट पे टैक्स किया जाता है। सो इफ वी हैव अ लुक ओवर द इनकम ऑफ पर्सन, लाइक एक पर्सन जो सैलरी इनकम अर्न कर रहा है 6 लाख रुपया, उसके ऊपर 0% टैक्स है। वही सेम अगर एक दूसरा इंडिविजुअल है 6 लाख रुपया वो साल का कमा रहा है तो वो 10,000 रुपए टैक्स दे रहा है। इसी तरह अगर हम 12 लाख रुपए वाले की बात करें, 60 लाख रुपए वाले की बात करें, 1 करोड़ रुपए वाले की बात करें और 10 करोड़ रुपए वाले की बात करें, तो डिफरेंस इज टू हाई। लाइक 10 करोड़ वाला आदमी, 10 करोड़ पे सैलरी कमाने वाला एक आदमी वो 30.17% के ऊपर टैक्स दे रहा है, जबकि बिजनेस इनकम वाला 34.12% के ऊपर टैक्स दे रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कह सकते, ये उसके लिए डिफाइन की गया एक रूल है कि भाई वो इतना ही टैक्स देगा। उसकी रीजन ये है कि वो मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड बहुत ज्यादा करता है। और सैलरीड इंडिविजुअल के लिए रूम फॉर मैनिपुलेशन इज टू लो, बिकॉज वो बैंकिंग चैनल के थ्रू अपनी सैलरी अर्न करता है, उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स कटा होता है, एंड उसके पास रूम बहुत कम है कि वो अपने रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करें, अपनी सैलरी को अंडरस्टेट करें। सो लेट्स टॉक अबाउट द मिनिमम टैक्स। Okay, minimum tax is where the business revenue is more than or equal to 10 million rupees. अब 1 करोड़ रुपए जिसका रेवेन्यू है उसके लिए मिनिमम टैक्स अप्लाई किया जाता है। उसकी रीजन क्या है? ये एक एंटी अब्यूसिव रूल है जो कि इन बिजनेसमैन के लिए अप्लाई किया गया, बिकॉज ज्यादातर लोग अपने रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करके या तो लॉस शो करते थे या अपने प्रॉफिट को कम शो करते थे और लोअर टैक्सेशन पे करते थे, जबकि उनका जो रेवेन्यू है दैट इज ह्यूज। लाइक 1 करोड़ रुपया साल का रेवेन्यू अर्न तो कर रहे हैं, लेकिन नीचे कहते हैं कि जी हमें तो लॉस हो रहा है। तो इसको एंटी अब्यूसिव करने के लिए मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 इंट्रोड्यूस किया गया। In the start, the tax rate was 1%, then it increased to 1.25%, and now it is 1.5%. मिनिमम टैक्स कहता क्या है कि आपकी लॉस आया, आपका प्रॉफिट कम आया, वट एवर द रीजन, यू नीड टू पे दिस अमाउंट ऑफ टैक्स इन एनी केस। सो बिजनेस हैव टू पे हायर टैक्स आफ्टर। अब मिनिमम टैक्स फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी 1.5 लाख रुपया बन रहा था और आपका नॉर्मल टैक्स के स्लैब्स जब अप्लाई किए तो 2 लाख रुपए का नॉर्मल स्लैब्स में आया। अब इन दोनों में से जो हायर ऑफ है दैट विल बी द टैक्स लायबिलिटी फॉर द बिजनेस इंडिविजुअल। सेम विद द कंपनी के, और कंपनी के लिए कोई डिफाइंड लिमिट नहीं है, उसको मिनिमम टैक्स तो पे करना ही करना है। और फॉर द कॉर्पोरेशन द टैक्स रेट इज 29%। उसके लिए सिर्फ एक ही टैक्स रेट डिफाइन किया गया है और इसको रिड्यूस करते करते लेकिन 2000 फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2019 इट्स फिक्स्ड एट 29%। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें कैपिटल गेन्स की, तो कैपिटल गेन्स let's talk about the higher of minimum tax, normal tax, alternate corporate tax. Yes, Mubin, you are right. So let's talk about the capital gains. Capital gain is actually the appreciated value of an asset since its purchase. So we can say that difference of the value on the time of disposal and purchase of the asset is called capital gain. Wikipedia भी same definition इसकी देता है और इसका जो मेन स्कोप है वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड शेयर एंड सिक्योरिटीज के ऊपर है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज अब इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया स्टॉक इन ट्रेड को, बिकॉज अंडर IAS 2 stocks will be recorded at lower of cost or NRV.
तो कैपिटल गेन 2015 से पीछे जाएं तो एग्जिस्ट नहीं करता था. From 2015 or 16, the capital gain tax was introduced in income tax ordinance. The reason was बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करते थे, यानी परचेज एंड सेल करते थे और उसके ऊपर CVT 1% पे करते थे, एंड दैट्स ऑल. So government introduced the new capital gain tax to tax those individuals who are doing property business but not paying tax under normal tax regime. So यहाँ पे अब ये भी कंसिडरेशन में है, जैसे कि यूके में भी है, कि आप कैपिटल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कितनी फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं. If you are doing frequent transaction of property, then it will be considered as your business income. अब अगर लोग एक साल में एक ट्रांजैक्शन या 2 ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनको कैपिटल गेन के टैक्स के अंदर टैक्स किया जाता है. उसकी रीजन ये है कि दे आर अर्निंग समथिंग एंड दे हैव टू पे टैक्स. इधर एक ये कॉन्सेप्ट जरूर है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो उनसी है वो अभी तक एक्चुअल पे नहीं आई. अभी बहुत ह्यूज डिफरेंस है फ्रॉम मार्केट रेट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द डीसी रेट और एफबीआर वैल्यू. सो मेनली ट्रांजैक्शंस जो सी हैं वो बहुत सारी जगहों पे एफबीआर वैल्यू या डीसी रेट के ऊपर की जा रही होती है, बिकॉज द टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन दैट रेट्स. अगर आप उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको टैक्स भी अकॉर्डिंगली उतना ही पे करना है जो आपकी ट्रांजैक्शन है. दैट इज 1% फॉर सेलर एंड बायर बोथ. और ये एडवांस टैक्स है जो बाद में एडजस्टेबल है. इफ यू आर नॉट लायबल टू पे कैपिटल गेन्स तो वो आपकी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, और अगर आप कैपिटल गेन्स टैक्स के अंदर फॉल करते हैं तो फिर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स के अगेंस्ट एडजस्टमेंट मिलेगी. So in the case of immovable property, जो होल्डिंग पीरियड है वो पहले जब सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया, द होल्डिंग पीरियड वाज 3 years. देन 2 स्लॉट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए. एक स्लॉट था कि आप जो हैं वो जो बिल्ड प्रॉपर्टी विद बिल्डिंग है उसके लिए 4 साल की लिमिट रखी गई, और जो सिर्फ लैंड है उसके लिए 8 साल की लिमिट रखी गई इन फाइनेंस एक्ट 2019. बट इन फाइनेंस एक्ट 2020 क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा था, इस वजह से ये होल्डिंग पीरियड सेम कर दिया गया और रिड्यूस कर दिया गया. अब जो होल्डिंग पीरियड की लिमिट है वो 4 year है, मतलब हर साल के बाद आपका जो कैपिटल गेन लायबल टू टैक्स है उसको 25% से रिड्यूस कर दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, you purchase a property at 10 million and now it worth 11 million, so you earned a capital gain of 1 million. अब अगर आपने ये ट्रांजैक्शन 1 year के बाद की है तो इस गेन को 25% से रिड्यूस कर दिया जाएगा, मतलब 1 million minus 25%, 250,000 रिड्यूस कर दिया जाएगा. 750,000 is taxable, 250,000 is exempt from tax. ईच ईयर के गुजरते साथ आपको हर साल के बाद 25% रिडक्शन मिलेगी. अब यहां पे भी स्लैब्स डिफाइन की गई कि कितने कैपिटल गेन पे कितना टैक्स होगा. हायर यू अर्न, हायर यू पे द टैक्स. सो 5 million तक की लिमिट के ऊपर टैक्स रेट इज 5%. 50 लाख से 1 करोड़ पे तक 10% की लिमिट, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक 15, और 1.5 करोड़ पे से ऊपर 20% टैक्स किया जाएगा. So let's have some questions here. In which term we will get replacement in terms of CGT? Abdul Wahab Shah, can you please repeat or rephrase your question? Okay, Muhammad Mohsin, what if already purchased 4 years before? तो अगर 4 साल पहले आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी एंड नाउ यू पास फॉर 4 years, तो आपके ऊपर विद होल्डिंग अप्लाई होगा, कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई नहीं होगा. जो विद होल्डिंग आपका अंडर 236 के कटा होगा वो आपका एडजस्टेबल टैक्स होगा.
as you said, if a person liable for CGT, then tax will be adjustable. Okay, I said अगर आपका withholding tax कटेगा और आपके ऊपर capital gains apply नहीं होता, it means you own the property for more than 4 years, तो आपके ऊपर capital gain tax apply नहीं होगा, लेकिन transaction के ऊपर, property की transaction के ऊपर आपको 1% withholding pay करना है, तो that withholding will be adjustable against your income tax, right? Hope this will answer your question, Abdul Wahab. So inheritance tax. Inheritance tax is not applicable in Pakistan, but in case, जैसे कि उस्मान खालिद ने पूछा है, if a person inherits a home or a land and sells it within 6 months, will he be paying any capital gain tax? So inheritance tax के केस में inherited property आपके लिए taxable नहीं है, लेकिन it will be considered as your property और इसकी acquisition date आपके लिए वो consider की जाएगी जिस दिन आपको ये inheritance property transfer हुई है, and the cost for the purpose of capital gain tax will be considered as the cost fair market value on the date of acquisition. So अगर आज आपको ये property मिलती है, for example उसकी fair market value है 1 करोड़ रुपया और आपने 6 महीने बाद इसको सेल किया 1 करोड़ 20 लाख रुपए का, तो you will earning capital gain of 2 million and it is liable to capital gain tax, not inheritance tax. So Muhammad Mohsin Siddiqui, let's unmute him. Muhammad Mohsin Siddiqui, where is he? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम अस्सलाम सुलेमान साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका क्वेश्चन मुझे इस वजह से लगा है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, उसकी रीजन ये है कि मार्केट ट्रेंड से रिलेटेड है। सो द थिंग इज, आपका क्वेश्चन है कि मार्केट प्राइस के ऊपर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या नहीं। सो इट्स वेरी गुड टू ट्रांजैक्ट एट मार्केट वैल्यू बिकॉज गवर्नमेंट को हायर टैक्स जाएगा और आप एक अच्छा काम करेंगे टैक्स पे करके। तो लेकिन नहीं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जैसे अभी आपने कहा विद होल्डिंग टैक्स जो है वो इनकम टैक्स के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर के ऊपर ये टैक्स जो बच जाएगा, क्या वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले सालों में? पहली बात। और दूसरी बात ये, अगर मैं तो राजी हो रहा हूँ बीइंग अ सेलर, वो बायर राजी होगा कि नहीं होगा, उसका इशू आएगा ना, वो तो नहीं होगा। हाँ जी, मैं आपको इसका आंसर करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने कई बार, मेरा ख्याल है 2 या 3 मरतबा बोला कि फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ 220 मिलियन हम सिर्फ 2.2 मिलियन पर्सन्स हैं जो कि इनकम टैक्स में एक्टिव हैं या अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उनमें से भी मेजॉरिटी उनकी है जो कि अपना टैक्स जीरो दिखाते हैं, कि मतलब हम पे कोई टैक्स लायबल ही नहीं है। अब जो ये प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन है, बेसिकली एफबीआर वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट इसी वजह से इंट्रोड्यूस किया गया ताकि इसको रैशनलाइज किया जा सके। रैशनलाइज मीन के मतलब ट्रांजैक्शन तो ये सबको पता है कि ये मार्केट वैल्यू इसकी बहुत हाई है, बट इसकी जो ट्रांजैक्शन एक्चुअल में गवर्नमेंट के पास जा रही है और जो स्टैम्प ड्यूटीज और टैक्सेस पे किए जा रहे हैं वो मार्केट वैल्यूएशन की बजाय एफबीआर या डीसी वैल्यू पे किए जा रहे हैं। अब द मेन थिंग इज कि वो अगर आप मार्केट वैल्यू की बात करते हैं तो जो दूसरा बायर का कंसर्न है वो ये है कि भाई मेरे पास वाइट मनी नहीं है,
नाउ व्हाट यू डू कि आपको तो अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, जो भी सेलर है उसको तो अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, उसको तो पैसे चाहिए। इन रिटर्न वो कुछ टैक्स तो पे करता है लेकिन बाकी का ब्लैक बना देता है। यहाँ पे जब तक टैक्स बेस नहीं बढ़ाई जाएगी ये मसाइल ऐसे ही चलेंगे। Did you unmute him? Right. Okay. I think we should move towards the end because. Okay, let's move towards the shares and securities. Shares and securities की जब हम बात करते हैं तो those shares and securities who acquire after 1st July 2013 are taxable, and the tax rate for filer is 15% and for non-filer is 20%. और इसी तरह अगर हम एक्विजिशन बिफोर 1st जुलाई में जाते हैं तो दैट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। So there is a question, registrar of property won't transfer the property without the challan of 236K. Yes, Farjad, it is right. आप विद होल्डिंग टैक्स के बगैर प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ये उसकी चेकलिस्ट में है, जब तक आप उसकी चेकलिस्ट पूरी नहीं करेंगे वो रजिस्ट्री पास नहीं करेगा। So it is actually विद होल्डिंग टैक्स को इसके साथ इंटीग्रेट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एफपीआर के पास एक डेटाबेस मेंटेन हो कि हु इज डूइंग व्हाट। लाइक इससे पहले तक ये एफपीआर के साथ अटैच नहीं था। यू जस्ट पे द स्टैम्प ड्यूटी, कॉर्पोरेशन जो ये लैंड का टैक्स है वो आप पे करते थे एंड दैट इज इट। लेकिन इसको एफबीआर के लिंक करने की वजह से एफबीआर मालूमात का जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी इंट्रोड्यूस, वो एक अलग से बनाया गया ताकि हर पर्सन अपने आप को देखे कि एफबीआर हैव डेटाबेस और उसको पता है कि आप क्या क्या कर रहे हैं। और उसके डैशबोर्ड को अगर देखा जाए तो उसके अंदर काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट की गई है, ऑल्दो वो किसी वजह से डेफर कर दिया गया है कि उसको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया गया। बट व्हेन इट विल बिकम एक्टिवेटेड तो हर एक को पता चलेगा कि एफपीआर हैव एवरीथिंग अबाउट हिम। सो लेट्स टॉक अबाउट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब जो इनकम ऊपर कवर नहीं हुई वो बेसिकली यहाँ पे टैक्सेबल है, यहाँ पे टैक्स होती हैं। जैसे आपकी डिविडेंड इनकम है, जैसे आपकी रॉयल्टी है, प्रॉफिट ऑन डेट है, ग्राउंड रेंट है, रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है, इनकम फ्रॉम द लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी है। मतलब जो भी आपका वहां पे टैक्स नहीं हो रहा था यहाँ पे टैक्सेबल है। सो लीज डिविडेंड्स की अगर बात की जाए तो मतलब हमें सबको पता है कि इसके ऊपर टैक्स करता है सेम इन यूके। प्रॉफिट ऑन डेट जो आप इंटरेस्ट अर्निंग है आपकी फ्रॉम बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। और इसको प्रॉफिट ऑन डेट को काफी रैशनलाइज किया गया है। उसकी रीजन ये थी कि बहुत सारे लोग जिनके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी और वो सिर्फ बैंक में पैसा रखते थे और वहां से अर्निंग करते थे, इसको डिस्करेज करने के लिए कि सिर्फ पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास ना रहे, इकोनॉमी में सर्कुलेट करे। प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर टैक्स रेट्स भी इंक्रीज किए गए हैं और इसको फाइनल टैक्स में से निकाल के मिनिमम टैक्स में डाला गया ताकि मतलब रैशनलाइज किस्म का आपसे आउटपुट लिया जा सके। सो इफ वी टॉक अबाउट द डिडक्शंस अलाउड, तो same as in allowed in business, or zakat paid in case of profit on debt, the zakat paid is allowable deduction like as expense. Depreciation or amortization charge under section 22 and 24, same rule for deductions as in as described in business income. So if we talk about like dividend income, तो 12.5% टैक्स है एक्टिव टैक्स पेयर्स के लिए। और सेम अगर हम प्रॉफिट ऑन डेट की बात करें तो उसमें 0 to 5 मिलियन तक 15%, 5 मिलियन to 25 मिलियन 17.5% और 25 to 36 मिलियन 20% टैक्स कर दिया गया। इसकी रीजन सिर्फ ये थी कि रैशनलाइज किया जा सके, पैसे की सर्कुलेशन शुरू हो, पैसा सिर्फ एक ही हाथों में ना रहे, क्योंकि जब पैसा सर्कुलेट करेगा तो तब नीचे तक जाएगा। So let's talk about foreign remittances
इनहेरिटेंस, गिफ्ट इनकम एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इनकम। तो फॉरेन रेमिटेंस के बारे में यह है कि फॉरेन रेमिटेंस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स in any case. However, a threshold of rupees 5 million is defined by FPR. Since 2017 तक फॉरेन रेमिटेंसेस के लिए किसी किस्म की कोई लिमिट डिफाइन नहीं थी, डायरेक्ट टैक्स फ्री हैं, अभी भी टैक्स फ्री हैं, जितने मर्जी बाहर से आए टैक्स एग्जेम्प्ट हैं। लेकिन इन फाइनेंस एक्ट 2018 इट वाज सजेस्टेड के जब ये रेमिटेंसेस 10 मिलियन से ऊपर जाएं तो इसका सोर्स पूछा जाए। उसकी रीजन ये है कि ये बहुत बड़ा एक चंक था, मनी लॉन्ड्रिंग भी इसी के थ्रू हो रही थी, इस वजह से इसके लिए लिमिट डिफाइन की गई कि भाई 1 करोड़ रुपए से ऊपर जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं उसका सोर्स और वजह होनी चाहिए, उसके बगैर नहीं आनी चाहिए। अभी टैक्स कोई नहीं लगा इसके ऊपर किसी भी किस्म का, लेकिन इसका सोर्स पूछा जाता है। फिर 2019 में इसको कम कर दिया गया फ्रॉम 10 मिलियन टू 5 मिलियन, ताकि मजीद रैशनलाइज इसको किया गया ताकि आपके सोर्सेज का पता चले और इट इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब आपकी मनी लॉन्ड्रिंग को जो ट्रेल चल रहा था कि भाई यहाँ से पैसा किसी भी तरीके से बाहर भेजो और वहां से फॉरेन रेमिटेंस के थ्रू पाकिस्तान मंगवाओ, दैट इज योर वाइट मनी। और लोग जो है वो यहाँ पे टैक्स पेयर्स को भी डिस्करेजमेंट थी इससे कि भाई मैं इनकम अपनी शो करूं और उसके ऊपर हायर रेट पर टैक्स दूं और फिर उसके बाद मेरी वाइट मनी जनरेट होगी। तो दैट वाज अ सोर्स यूज्ड बाय सम पीपल, और इसको एंटी अब्यूसिव करने के लिए इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट डिफाइन की गई। इससे ऊपर जब कोई भी फॉरेन रेमिटेंस आपको आएंगे तो आपको सोर्स को डिफाइन करना पड़ेगा। अब अगर इनहेरिटेंस की बात की जाए तो पाकिस्तान में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, आपको जो भी इनहेरिटेड है वो टैक्स एग्जेम्प्ट है। बट एज डिस्क्राइब बिफोर, कैपिटल गेन के केस में आपकी एक्विजिशन डेट वो कंसीडर की जाती है जो कि आपकी ट्रांसफर डेट है, और उस दिन जो आपके एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू है दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर एक्विजिशन कॉस्ट। और अगर आप सेम रूल्स अप्लाई एज सीजीटी कि अगर आप उसको 4 साल के बाद सेल करते हैं उस प्रॉपर्टी को तो आपके ऊपर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ विदहोल्डिंग टैक्स आपने पे करना है जो कि ट्रांजैक्शन के ऊपर है। इसके बाद अगर हम बात करें गिफ्ट की, तो गिफ्ट इनकम फ्रॉम डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर आपके डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव मींस आपके बच्चों से, आपके पेरेंट्स से, आपके डायरेक्ट बहन भाइयों से अगर आपको गिफ्ट कोई मिल रहा है तो दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, और किसी भी या ग्रैंड पेरेंट्स से। अब इसके अलावा जो भी जहां से भी आपको पैसे आ रहे हैं वो एग्जेम्प्ट नहीं है, उसको गिफ्ट में कंसीडर नहीं किया जा सकता। ये भी एक एंटी अब्यूसिव रूल जो है और रैशनलाइज करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले ये था कि कोई भी आपको गिफ्ट दे और उसके प्रॉपर चैनल के थ्रू दे तो गिफ्ट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। होता ये था कि एक पर्सन है जिसके पास वाइट मनी काफी है, वो अपनी अर्निंग के लिए आपको गिफ्ट कर देता था और आपसे चार्जेस रिसीव कर लेता था। इसको एंटी अब्यूज करने के लिए ये गिफ्ट इनकम को डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव्स के साथ नहीं कर दिया गया कि इसके अलावा जहां से भी आपको गिफ्ट आएगा वो टैक्सेबल होगा। अब अगर हम बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो उनकी जो इनकम आती है दैट इज एक्चुअली डोनेशंस, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अंडर 100C ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उनकी इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। सर्टेन रूल्स आर अप्लाई कि जैसे अगर वो अपनी डोनेशंस को फॉर द पर्पस ऑफ बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी नहीं यूज करते और ज्यादा चंक छोड़ देते हैं 25% से, तो उनके ऊपर 10% टैक्स एप्लीकेबल होगा। ड्राइंग्स उधर जो है वो इसके अलावा उनके ऊपर सर्टेन लिमिट्स लगती हैं, और जो आप डोनेशन उनको दे रहे हैं उसके ऊपर बेसिकली आपको टैक्स क्रेडिट्स भी मिलते हैं और आपको अलाउेबल डिडक्शन भी मिलती है अगेंस्ट योर टैक्स। So here is the time for having some question because we are ended our presentation.
plant, etc., either he will be required to pay VAT or not. नहीं अप्लाई होता. वैट आपको सिर्फ और सिर्फ आईपीपी पे करता है, सीएमए पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन करता. Okay. Faik Abdullah, which variant of taxation paper should be taken? It all depends on you. What is your future plans? अगर आप सिर्फ F6 के अंदर पाकिस्तान वेरिएंट रख सकते हैं, P6 में आपको यूके वेरिएंट ही पढ़ना पड़ेगा. एंड for you all, अगर आप टैक्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको मतलब इनकम टैक्स के नॉलेज आपको ऐसे ही नहीं आएगा. आपको उसकी प्रैक्टिकलिटी देखने के लिए आपको उसमें काम करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट सिंपल एज दैट कि आप बस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़े और आपको पता चल जाएगा. आपको उसके साथ रूल्स डिफाइन है, उसको भी देखना पड़ता है, और प्रैक्टिकल अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है व्हाट इज डिफाइंड इन इनकम टैक्स. Best book for Pak taxation is Income Tax Ordinance 2001. Sumaira Khalid, you are exactly right. आपको अगर प्रैक्टिस नहीं की आपने तो आप लर्निंग नहीं कर सकते, क्योंकि टैक्स वो है कि जहाँ पे आपको डिफरेंट केस लॉज भी देखने पड़ते हैं कि इसको हैंडल कैसे करना है, रूल्स भी हैं इसके, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा. तो इट रियली नीड योर कंसंट्रेशन. Remittance received by Wall Street Exchange is considered foreign remittance. Bank transaction. Actually, foreign remittance को बैंकिंग चैनल के थ्रू ही माना जाता है. उसके लिए पीआरसी होता है, और वो अगर आपके पास इनकैशमेंट सर्टिफिकेट नहीं है तो वो क्वेश्चन रेज होता है, और वो ट्रिपल जो एफपीआर है वो इसको सही नहीं मानता अगर वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू नहीं है. Fizan Abdul Razak. Fizan, could you please explain exemptions for donations? So this will be answered by sorry guys. Thank you, Hafiz. Okay. जहां तक रह गई ये बात इसकी कि भाई आपका जो है एग्जेप्शन फॉर डोनेशंस, ये क्या चीज है? जो अगर आपकी जो डोनेशंस हैं वो आपने किसी रजिस्टर्ड उसको दिए हैं ऑर्गेनाइजेशन को जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, देन इट वुड बी एग्जेम्प्टेड. अदरवाइज दे आर chargeable and they will be added back in your income, taxable income. Income from freelancing comes under, well, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान में भी फ्रीलांसिंग हो रही है और फॉरेन से भी फ्रीलांसिंग हो रही है, अगर तो आपकी फॉरेन रेमिटेंस आती है देन इट वुड बी टैक्स फ्री. वेदर इसके ऊपर 5% विद होल्डिंग टैक्स कटेगा एट सोर्स फ्रॉम बैंक. एंड जो आपकी फ्रीलांसिंग अगर पाकिस्तान से है देन इट वुड बी ट्रीटेड एज योर नॉर्मल इनकम एंड इट विल बी इन द एरिया ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. No, 5 million limit on foreign remittances is per transaction. अगर आपकी 5 मिलियन से ऊपर की ट्रांजैक्शन है then you have to define your source of income to FBR. Yes, if made to registered NGO then it would be deductible directly from income.
Again, Rabia, subscriptions and donations are allowed in Pakistan. I have already told you these are only allowed if paid to registered organizations. ओके फ्रीलांसिंग दो चीजें हैं इसके अंदर, दो तरह से फ्रीलांसिंग होती है, एक कि अगर आपको फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, दूसरा अगर आपको पाक रुपीस में ट्रांसफर हो रही है। अगर आपको फॉरेन रेमिटेंस आ रही है देन इट इज टैक्स फ्री, इसके ऊपर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वेदर यू हैव टू पे विदहोल्डिंग टैक्स ऑफ 5% दैट विल बी डिडक्टेड बाय बैंक एज, जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन बैंक में आएगी बैंक उसके ऊपर अपना फॉरेन उसका 5% विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट कर लेगा। अच्छा, और अगर आपकी जो है फ्रीलांसिंग की इनकम वो पाकिस्तान से जनरेटेड है तो ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में की कैटेगरी में फॉल होगा और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। Is there any method prescribed by FBR to assess market value? Well, इसका अभी तक कोई रूल ऑफ थंब नहीं बनाया FBR ने, लेकिन इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर जो है इंडिपेंडेंट इवेल्युएटर्स होते हैं मार्केट में, वो इवेल्युएशन करते हैं आपकी प्रॉपर्टी की और उसकी मार्केट वैल्यू की, उसको ही कंसीडर किया जाता है। Which ACCA books are available for taxation papers? Well, that's a tricky question. I think जो आपके ट्यूटर हैं, जो इंस्टीट्यूशन है आप जिससे पढ़ रहे हैं, वो आपको इस बारे में बेहतर सजेस्ट कर सकते हैं। Yes, DC rates are different and market rates are different. Yes, there are VAT implications, and these are for just distributors like IPPs, like fuel distribution companies, like petroleum and other distribution companies like CNG distributors. Yes, there is VAT and VAT. Yes, tax is a very vast field, and if someone can properly digest it, it has a great scope in coming days. Yes, they are taxable. Again, these are considered as your, this will be taxable in your, you can say capital gains. So if you sell a jewelry item or gold, it would be taxed at capital gains if you have a less than 4 years holding period. If that is more than that, then it would be exempt. वेल ये इस तरह नहीं होता कि आप सिर्फ सेक्शन 12, 15, 18 एंड 37 इनको प्रैक्टिस कर लें। जब आप इसके अंदर आते हैं, टैक्स प्रैक्टिस के अंदर आते हैं, तब आपको मुख्तलिफ जो क्लाइंट्स हैं या मुख्तलिफ जो केसेस हैं उनको हैंडल करना पड़ता है। उसके अंदर मुख्तलिफ होते हैं, जिस तरह 214D का आया था, उसके बाद 214E आया, 161205 है। ये मुख्तलिफ सेक्शन है जिनके नोटिस वगैरह आते हैं और आपको उनका केस डील करना पड़ता है। अगेन उसके अंदर फिर जो इस तरह पहले बताया हाफिज सुलेमान ने कि टैक्स कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसके बाद टैक्स डिडक्शंस होती हैं, उसके बाद उनके प्रूफ होते हैं, उसके बाद आपका पे एज यू अर्न वाला कॉन्सेप्ट होता है। कई जो क्लाइंट्स हैं आपके या जो आपके सप्लायर्स हैं जिनको आपने सप्लाईज प्रोवाइड की होती हैं, वो आपका टैक्स जो है एट सोर्स काटते हैं, उसकी एडजस्टमेंट्स होती हैं। सो दिस इज अ वेरी वास्ट फील्ड। like